بسم الله الرحمن الرحيم. Okay, my dear students, yesterday you know that we had done with the uh, different methods for the purification. Okay, the first method we have done, that was the diffusion. Dissolving, filtering, evaporating, and crystallizing. This method was used when the two solids, they are mixed in each other in such a way that one of the solid is soluble and the other one is insoluble in water. The second method we have done, that was the decanting. Decanting method is used when a solid is mixed in a liquid in such a way that the solid is insoluble, okay, and it has got the large pieces, okay, which are insoluble in the liquid. The third method we have done, that was the centrifuging. If the solid and liquid, they are mixed in such a way that the solid is insoluble, but it got very small pieces which are always expanded in the liquid. Okay. And the next method, that was the separating funnel. If you got the different liquids, okay, and the liquids, they are immiscible, they are insoluble in each other. So if you want to separate them, you have to use the separating funnel. Okay, so today, my dear, we are going to start with the next method, fifth method, that is the sublimation. I think we have done in the first chapter kinetic particle theory about it. I told you सब्लिमेशन क्या होती है, मैंने इसके बारे में बताया था कि दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है जी. ठीक है, यानी एक चीज का मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट भी 40 डिग्री सेल्सियस है, दोनों सेम है. तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं, व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू हीट देम, they directly changes into the gaseous state, okay, without passing from the liquid state. Okay, तो ऐसे सब्सटेंसेस को सब्लिमेशन, उनके लिए प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं. और चार मैंने चीजें बताई थी जिनकी सब्लिमेशन होती है, which are present in your syllabus. The first one, that is ammonium chloride. The second one was iodine. The third one, dry ice, जो घर की फ्रीजर में साइडों पे जमी होती है, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहते हैं. एंड द लास्ट थिंग, दैट वाज नैफ्थलीन. ये मैंने आप लोगों को पुरानी चीजों में रिकॉर्डिंग्स आप देख लें, उसमें मैंने ये बताया हुआ है आपको. तो सब्लिमेशन, ये वाला प्रोसेस हम लोग कब यूज करते हैं जी? The process of sublimation that is used when you got the two solids like solid 1 and solid 2. ठीक है, these are the two solids. They are mixed in each other in such a way that the solid 1, it can sublime, इसकी sublimation हो सकती है, whereas solid 2 cannot sublime. ठीक है जी, अगर ऐसा होता है तो ऐसी चीज के लिए हम लोग ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर दोनों जो सॉलिड्स हैं, दे कैन सब्लाइम, यानी पहले वाला भी सब्लाइम हो सकता है, दूसरे वाला भी जो है वो सब्लाइम हो सकता है, दोनों की सब्लिमेशन हो सकती है, तो देन वी कैन नॉट यूज दिस मेथड. ये मेथड यूज नहीं कर सकते. और अगर दोनों की सब्लिमेशन नहीं हो सकती, कैन नॉट sublime solid 1 and solid 2, that also cannot sublime, इसकी भी sublimation नहीं हो सकती. So again, my dear students, you cannot use this method. So this method is only suitable, okay, for those solids, mixture of solids in which one of the solid, it can sublime, whereas the other solid, it cannot sublime. तो एक की सब्लिमेशन हो सकती है, दूसरे की नहीं हो सकती, तब हम ये मेथड जो है वो यूज करते हैं. अगर दोनों सॉलिड सब्लाइम कर जाएं
या दोनों सॉलिड्स की सब्लिमेशन नहीं हो सकती, तो तब आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये मेथड तभी यूज होगा जब एक सॉलिड सब्लाइम हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा कोई हूँ। वजह होती है मतलब कोई इसकी कोई एक्सप्लेनेशन की क्यों इसकी कोई एक्सप्लेनेशन होती है कि बाकी दो में नहीं इस्तेमाल कर सकते इसमें क्यों? बेटा अब वजह तुझे बताता हूँ। अगर दोनों की सब्लिमेशन मेरे चंदा हो सकती है, दोनों सॉलिड रखे हुए हैं, हीट करता है, दोनों ही हवा में उड़ जाएंगे, लहदा कैसे करेगा? और अगर दोनों की सब्लिमेशन नहीं हो सकती तो भाई फिर लहदा करने के लिए ये प्रोसेस यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो तब यूज करेंगे ना जब एक की सब्लिमेशन हो सकती है और एक की नहीं हो सकती। ठीक है जी। चलिए जी, मैं यहाँ पे एक मिक्सचर ले रहा हूँ। सपोज करें कि मेरे पास एक मिक्सचर है जी, सोडियम। बेटा आपने ना अभी कंसंट्रेशन इधर रखनी है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता जिनका ध्यान इधर नहीं है। अगर आपने मजाक करना है दोनों में, यू कैन लीव माय क्लास। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो पढ़ के और ये स्टार में के अच्छे ग्रेड्स आए। मुझे बिल्कुल भी ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं है जो कि क्लास में आके और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करना है भाई, कहीं और जाके पढ़ लो, मेरे पास मत आओ। अच्छा जी, दिस इज, लेट्स सपोज हमारे पास एक चीज है जी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो घर में आपके खाने वाला नमक है, ये सॉल्ट है। ठीक है, इसके अंदर मिक्स हो गया है जी एक चीज, अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों मिक्स हो गए हैं जी। मुझे सोच के बताइए, क्या मैं ये वाला प्रोसेस यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं, वजह बताइए जरा। किसकी सब्लिमेशन हो रही है जी? सोडियम की। सोडियम की हो रही है। अमोनियम क्लोराइड की अभी बताया भी है, चार चीजों की सब्लिमेशन होती है। अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, आयोडीन और नेफ्थालीन। यार हमारे सिलेबस में ये चार चीजें हैं, क्यों नहीं याद आ रही है? कौन कौन सी है? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ड्राई आइस एंड नेफ्थालीन। तो ये चीजें आपकी जो है वो, इनकी सब्लिमेशन हो सकती है। ओके, तो सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो घर में आपके खाने वाला नमक होता है, उसकी सब्लिमेशन नहीं होती। उसको अगर गर्म करें तो वो पहले लिक्विड बनता है, फिर अगर उसको हीट करें तो फिर वो गैसियस फॉर्म में जाएगा। जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जो है वो चला जाता है। तो हम लोग ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस में करते क्या है, सबसे पहले हम लोग जो है ये एक डिश लेते हैं। ठीक है जी, इसमें हम लोग ये मिक्सचर डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड और दूसरी चीज है जी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, ये डिश के अंदर ये जो मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर डाल दिया। सोडियम क्लोराइड जो है इट कैन नॉट सब्लाइम, इसकी सब्लिमेशन नहीं होती। whereas अमोनियम क्लोराइड इट कैन सब्लाइम, इसकी सब्लिमेशन होती है। तो मेरे बच्चों हम लोग फिर एक की सब्लिमेशन हो रही है, एक की नहीं हो रही, तो हम लोग ये वाला मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो एक डिश होती है हीट करने के लिए। ठीक है, किसी को इसका नाम पता है कि क्या है? इवेपोरेटिंग डिश। इवेपोरेटिंग डिश नहीं जी, चाइना डिश। चाइना डिश होती है, बिल्कुल जी। ये व्हाइट कलर की होती है, इसको चाइना डिश जो है वो कहते हैं जी। ठीक है, सो दिस इज माय डियर चाइना डिश। ठीक है, इसमें जो है वो तुम लोग इसको हीट करना शुरू करो। इसको तुम लोगों ने हीट करना है और क्या करना है कि इसके ऊपर जो है वो तुम लोगों ने एक फनल जो है वो उल्टी इस तरीके से लटका देनी है। यानी वो किसी स्टैंड के साथ इसको खड़ा करके ये फनल उल्टी जो है वो यहाँ पे लटका देनी है, इसके ऊपर रखनी नहीं है। यानी इस तरह नहीं करना कि ये डिश है तो इसके ऊपर तुम लोग फनल रख दो, इस तरह नहीं करना। नॉट लाइक दैट, इस तरह नहीं करना, बल्कि वो फनल जो है वो ऊपर होनी चाहिए काफी।
ठीक है। और यहाँ पे चाइना डिश के अंदर सोडियम क्लोराइड और दूसरा अमोनियम क्लोराइड जो है वो पड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब अमोनियम क्लोराइड जो है ये देखें, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये सॉलिड होता है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पे ये टूट जाता है, टूट के यहाँ से NH3 गैस बनेगी जिसको अमोनिया गैस कहते हैं। दिस इज द अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। अब फर्क देखो, अगर NH4 होगा तो वो अमोनियम है, अगर NH3 होगा तो वो गैस है, अमोनिया गैस। ये फर्क याद रखो जरा। अक्सर बच्चे अमोनिया और अमोनियम को मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, अमोनिया is a gas and it is NH3 and NH4 this is actually ammonium chloride। ठीक है जी। तो ये जब इसको हीट करेंगे तो ये N और यहां से 3 H लेके NH3 और बाकी पीछे क्या बचा, एक H बचा और एक Cl बचा, तो ये HCl बन जाएगा। ये भी तुम्हारी गैस है, ये भी तुम्हारी गैस है। तो ये टूट के गैस बन के ऊपर की तरफ जाएगी। यहां पे इसको ठंडी जगह मिलेगी तो ठंडी जगह पे ये दोनों गैसेस दोबारा से ज्वाइन कर जाएंगी, दोबारा से ज्वाइन करके फिर से ये अमोनियम क्लोराइड सॉलिड बना देंगी इस तरह, क्योंकि ये ठंडी जगह है। तो यहाँ पे इसकी साइडों के साथ जो है ये अमोनियम क्लोराइड सारा लगता चला जाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड सारा यहाँ पे चिपक गया, यहाँ पे जो है ये अमोनिया गैस बन रही है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है जो कि ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है। ठीक है जी। जब ऊपर इसको ठंडी जगह मिलती है तो यहाँ पे ये दोनों गैसेस दोबारा से ज्वाइन करके अमोनियम क्लोराइड बना देती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कुछ मैजिशियंस होते हैं, जादूगर, जो आप लोगों को खाली जार्स दिखाते हैं शीशे के बने में कि देखो ये खाली हैं, और उनको बाद में वो इस तरह करते हैं तो एक व्हाइट कलर का स्मोक धुआं सा निकलता है, तुम लोग कहते हो कि इसने मैजिक कर दिया है। तो वो उन दोनों जार्स के अंदर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैसेस होती हैं जो कि कलरलेस है, हमें नजर नहीं आ रही होती। तो जब उन दोनों को मिक्स करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है जो कि सॉलिड है। तो सॉलिड के पीसेस जब गैसेस में बनेंगे तो वो चीज आपको व्हाइट कलर की जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। डिड यू गेट इट? अच्छा जी। तो आपका अमोनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे सारे का सारा जो है कि चिपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड सारे का सारा आपका यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो फनल है इसको उतार के आप लोग एक नाइफ ले लें, नाइफ के साथ इसको खुरच के रैता कर लें और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आपका बचा हुआ रह जाएगा। तो इस तरीके से दोनों चीजें एक दूसरे से सेपरेट हो गई बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। समझ आती है जी? तो यहाँ पे लिख लें, हीट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम chloride in a dish with an inverted funnel hanging upward. Ammonium chloride will change from solid to gas directly by sublimation and will be collected on inverted on walls of inverted funnel. Whereas
sodium chloride cannot sublime, so would remain in the dish. ठीक है जी, तो इस तरीके से मेरे बच्चों उन दोनों की सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज योर फिफ्थ मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। ठीक है जी। Okay guys, if you people have copied, can I rub this one? हाँ एक मिनट। Okay, my dear, now we are going to start with the sixth method, that is the simple distillation. ठीक है जी। ये सिंपल डिस्टिलेशन जो है ये क्या होती है जी? सिंपल डिस्टिलेशन मेरे बच्चों ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम कब यूज करते हैं, जब एक सॉलिड चीज लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाए और इस तरीके से मिक्स हो कि सॉलिड जो है इट इज सॉल्युबल इन द लिक्विड। ठीक है जी, सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर जो है वो सॉल्युबल है, नजर आना बंद हो गया है, तो तब हम लोग ये मेथड जो है वो यूज करते हैं जी। मसलन आपका जो सॉल्ट है, खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड तो कहते हैं, जो घर में खाने वाला नमक है वो सोडियम क्लोराइड है बेटा, और दूसरी चीज वाटर, ये दोनों मिक्स हो गए हैं। ठीक है जी, इनको हमने सेपरेट करना है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं जी। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन is a technique which is used when the solid and is soluble in the liquid and you want to separate the solid from the liquid, then you can use this technique. सिंपल डिस्टिलेशन में हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है इस तरीके से। ठीक है जी, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो है ना ये मिक्सचर डाल दिया सॉल्ट का प्लस वाटर का। ठीक है जी, इसके ऊपर जो है ये एक स्टॉपर लगा होता है जिसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं जी बंक। ठीक है जी, बंक, इसको स्टॉपर भी कहते हैं, बंक भी कहते हैं। इसके अंदर जो है वो एक होल होता है और इस होल के थ्रू एक इस तरीके से जो है कंडेंसर होता है। ठीक है जी, वो कंडेंसर जो है वो किस तरीके से बना होता है, ये मैं इसकी शेप बता रहा हूं, वो इस तरीके से बना होता है। इस कंडेंसर को जो है वो हम कहते हैं लाइबिक कंडेंसर। इसका क्या फंक्शन होता है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये जो लाइबिक कंडेंसर है इसमें यहां से वाटर इन होता है और यहां से वाटर आउट होता है जी। इसका फंक्शन क्या होता है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक फ्लास्क लगा देते हैं हम लोग। ठीक है जी, दिस इज द फ्लास्क। ठीक है जी, ये फ्लास्क जो है इसको और ये लाइबिक कंडेंसर को हम लोगों ने जो है ये बंक के साथ ज्वाइन नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसके रीजन मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। ले जी, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, क्या शुरू करेंगे, द फर्स्ट थिंग, हम लोग ये जो मिक्सचर है सॉल्ट का और वाटर का, इसको हम लोग हीट करना शुरू करने लगे हैं। क्या करना है, भी कंप्लीट तो कर लूंगा, बस डायग्राम शाबाश है, बनानी नहीं आ रही। बनानी नहीं आ रही, तो फिर ठीक है। अच्छा, ये सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है माय डियर, इसको आप लोगों ने हीट करना है, यू हैव टू हीट इट। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने जो है वो हीट करना है।
इसको हीट करके ये डायग्राम बना के और डिलीट करो। मैं कह रहा हूँ बना के डिलीट कर दो ना, ध्यान इधर तक ताकि तुम्हारा रहे। जैसे मैंने बना ली था अच्छा फिर ठीक है, मैंने कहा शायद यहाँ पे तुम कह रहे थे, मुझे नजर नहीं आ रहा। मेरे रजिस्टर में फिर ठीक है। अच्छा इसको जो है वो हीट करेंगे, हीट करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, तो बताएगा बॉयल होना शुरू हो जाएगा। एनी वन ऑफ यू ऑनलाइन और फिजिकल स्टूडेंट्स में से कोई बताएगा कि ये किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा? 100 से ऊपर, वेरी गुड। 102 डिग्री, 103 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि पानी भाई अगर अकेला होता तो तब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता। पानी के अंदर सॉल्ट है, जब कुछ इम्प्योरिटी किसी चीज में मौजूद होती है तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देती है और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। तो ये 102, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका हुआ है P4 के अंदर, ठीक है। सो यू पीपल शुड नो अबाउट इट, ठीक है जी। तो आपने इसको हीट करना शुरू करना है। सो व्हेन यू विल हीट इट माय डियर, व्हाट वुड हैपन, ये बॉयल होना शुरू होगा। ये सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है ये बॉयल करेगा किस टेम्परेचर के ऊपर? 102 डिग्री सेल्सियस या 103 डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर पे 100 से अबव होना चाहिए। तो जब ये बॉयल करना शुरू करेगा, ठीक है, तो इसके बबल्स बनेंगे यहाँ पे, ये बबल्स बनेंगे। अब जब ये बबल्स बनेंगे, कई दफा क्या होता है सुनने, कई दफा बबल्स इतना बड़ा, यानी ऐसे देखिए छोटा सा बबल बना, बड़ा होता गया, तो वो बबल ही यहां से इसमें एंटर हो जाता है। तो वो काम खराब है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक चिप्स डालते हैं जिनको हम कहते हैं बॉइलिंग चिप्स। दीज आर द बॉइलिंग चिप्स। ये बॉइलिंग चिप्स का काम क्या होता है कि ये जब चीज बॉईल करती है तो उसके बड़े बबल नहीं बनने देती, छोटे छोटे बबल जो है वो बनने देती है, ठीक है। तो बबल बनना शुरू होंगे और यहां से जो पानी है वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। इवेपोरेट होके यहां से गुजरेगा। ये तुम्हारा लाइबिक कंडेंसर है। ये इसकी पाइप है और इस पाइप के बाहर ठंडा पानी जो है वो पास कर रहा है। यहां से ठंडा पानी जाता है, यहां से निकलता है। मैं तुम लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप लोग, गर्मी है आजकल, फ्रीजर से ठंडा पानी निकालो, जरा निकाल के ग्लास में रख दो थोड़ी देर, तो क्या होगा, जो नीचे जगह है और जो ग्लास के बाहर जगह है वहां पे क्या होगा, पानी पानी सा आ जाएगा। वो पानी उसके अंदर से लीक नहीं होता, बल्कि एयर में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं गैसियस फॉर्म में। तो उन वाटर वेपर्स को वहां पे ठंडी जगह मिलती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करते हैं कि वाटर के जो वेपर्स हैं वो जब इसमें से पास होते हैं तो इसके बाहर ठंडा पानी जो है वो गुजरता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर ठंडक फील होती है और वो जो वाटर के वेपर्स हैं वो दोबारा से वाटर के ड्रॉपलेट्स बनके और यहाँ पे जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग रिसीवर फ्लास्क कहते हैं, रिसीवर फ्लास्क। रिसीवर फ्लास्क और ये जो लाइब्रेरी कंडेंसर है इनके बीच में बंद नहीं होना चाहिए। पेपर में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि उसने बंद बना दिया हुआ था और उसने कहा था कि बताओ कि इसने मिस्टेक किया है। पहली मिस्टेक बोला क्या की थी, वाटर इन यहाँ पे लिखा हुआ था, वाटर आउट यहाँ पे। दूसरी मिस्टेक थी इसके और इसके बीच में बंद बना दिया हुआ था, ठीक है। और उसने पूछा हुआ था कि ये मिस्टेक क्यों है। अगर बंद लगा होता तो भाई प्रेशर की वजह से ये जो ड्रॉपलेट है अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता। जब प्रेशर डेवलप होता तो ये ड्रॉपलेट दोबारा से पीछे की तरफ जाना जो है वो शुरू कर देता। तो इसीलिए हमें इसको ओपन रखना है। बम के बगैर तुम ही पाइप, बम बम के बगैर क्या, बम के बगैर पाइप को नहीं, मतलब जैसे हम वैसे ही उसके अंदर इसके अंदर ऐसे डाल दें, मतलब तो भाई यहाँ से पानी जो है वो साइडों से लीक हो जाएगा। तो पाइप इतना बड़ा हो के जितना मर्जी बड़ा हो साइडों में फिर भी जगह रह जाती है, वो तुमने एयर टाइट करना होता है। तुमने अगर यहाँ पे सपोज करो, तुम जो बात कर रहे हो, अगर हमारे पास 100 ग्राम वाटर होता और 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता और मैं तुम्हें कहता इन दोनों को सेपरेट करो, तो एज अ साइंटिस्ट तो तू जो तरीका बता रहा है उससे तो हमारे पास जो है ना वो सिर्फ 40 ग्राम पानी आना था, बाकी तो साइडों से जो है ना वो हवा में चले जाना था।
तो यू शुड बी प्रिसाइज व्हेन यू आर गोइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट। तो भाई हमें 100 ग्राम ही पानी कलेक्ट करना है, तो उसके लिए ये बंद लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है जी, और यहाँ पे नहीं बंद लगाना, ठीक है जी। सो दिस होल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल डिस्टिलेशन, एंड दिस मेथड इज ओनली यूज्ड व्हेन अ सॉलिड इज सॉल्युबल इन द लिक्विड। ओके, तो उसको हीट करेंगे, ठीक है। जो लिक्विड है वो बॉयल करके उसके वेपर्स बनेंगे, लाइबिक कंडेंसर से गुजरेंगे। लाइबिक कंडेंसर का काम क्या होता है, पेपर में अक्सर इसका क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइबिक कंडेंसर। तो इट चेंजेस द वेपर्स बैक टू लिक्विड। इसका काम होता है कि वेपर्स को दोबारा से लिक्विड में जो है वो चेंज कर देना। ये पेपर में अक्सर इसका, यस बेटा अब हो गया है। तू इसलिए तो तुझे मैं रोक रहा था कि ना ले, तू पता नहीं बार बार जी जी आप ले लीजिए, आप कंप्लीट है। जी बेटा नहीं, सॉल्युबल लिक्विड के लिए सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, उसके लिए एक और है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो अभी हम करेंगे, ठीक है जी। सो दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन। अब इसके पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इसके पॉइंट्स लिख लें। Heat the mixture of water and salt in, जी बेटा जी जी इसी के पॉइंट्स हैं, in round bottom flask with a Liebig condenser fitted to bung, ठीक है जी। Mixture of water and salt will boil at 102 degrees Celsius and water is evaporated, सही है, अपने लाइबिक कंडेंसर के आगे क्या लिखा हुआ है? fitted through bung, and water is evaporated and condenses back into liquid in condenser and connected in a receiver flask. Salt will be collected in, and salt will remain in round bottom flask. ठीक है बच्चों, so these three are the points of the simple distillation, ठीक है। अगर ये कॉपी करनी है मुझे इसको रब करने चाहिए, रब कर दूं। Okay guys, now the seventh method we are going to start, that is the fractional distillation.
ठीक है जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है और सिंपल डिस्टिलेशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड विद इट, क्योंकि दोनों में डिस्टिलेशन का वर्ड जो है वो आ रहा होता है, तो स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड विद इट। The fractional distillation में liquids के दरमियान होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जिंदाबाद। अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, लाइक लिक्विड 1, ठीक है जी, लिक्विड 2 एंड लिक्विड 3, ये 3 लिक्विड्स हैं सपोज करो आपके पास, ये तीनों आपस में मिक्स हो गए हैं जी, ठीक है जी। और इस तरीके से मिक्स हुए हैं कि ये तीनों के तीनों जो लिक्विड्स हैं ये एक दूसरे के अंदर मिक्सिबल है। मिक्सिबल का मतलब है सॉल्युबल है, यानी ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि लिक्विड 1 किधर है, लिक्विड 2 किधर है और लिक्विड 3 किधर है, ठीक है जी। और तीसरी एक और चीज है, इन तीनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है। मसलन इसका है जी 79 डिग्री सेल्सियस, इसका है 98 डिग्री सेल्सियस, इसका है जी 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट में फर्क जो है वो बहुत थोड़ा हो, 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट 79 है, इसका 82 है, 5 से कम है, तो तब भाई ये मेथड नहीं यूज हो सकता, ठीक है। अगर डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं उनमें उनका जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 5 से ज्यादा है, ठीक है, और वो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्सिबल है, तो तब आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगर डिफरेंस बहुत कम है, 5 से कम है, तो देन वी कैन नॉट यूज दिस मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो वो कंप्लीट नहीं होनी, ये पूरा कल जो है वो हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। और इस वीक में तुम लोगों की एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के 2 टॉपिक्स थे, ठीक है, वो दोनों जो है वो खत्म हो जाएंगे, और इस वीकेंड आई मीन फ्राइडे वाले दिन तुम लोगों का इसका टेस्ट होगा जी। तो वो जो फ्राइडे को टेस्ट होगा उसमें पहले से रहेगा कि सर दूसरे सर जो हम लोग चीजें कर चुके हैं उनसे रिलेटेड चीजें ऑटोमेटिकली आ सकती हैं, याद रखो। हमारी जो ये सेशन चलता है ना, उसमें जो चैप्टर हम लोग करवा देते हैं बच्चों को, उनसे रिलेटेड चीज अगर कोई आ जाए तो यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, ठीक है। एनी स्टूडेंट गॉट एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग यू कैन। Okay guys, everybody have a nice time, take care, Allah Hafiz.